चलिए फरवरी मार्च 2025 वेरिएंट 2 पेपर 2। पहले थोड़ा सा केस पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आंसर्स को भी सॉल्व करते हैं और पैटर्न को भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स हाईलाइट द की फैक्ट्स। चार्ली हैज वर्क for large rug manufacturer in country P for 10 years. She is planning to leave and set up her own business. Later this year, it will be called CR and will make luxury rugs. She knows that new businesses are at a greater risk of failing than existing businesses. Charlie has $10,000 of her own money to invest in a factory to make the rugs. She will also need to apply for $20,000 bank loan. Charlie has decided which type of business organization to choose for her new business. She could be a sole trader or set up as a private limited company. Charlie will need to understand the functions of management required to operate CR, whichever types of business organization she chooses. ठीक है, उसके बाद Charlie needs to choose a location for her new factory. Appendix 2 has information about two possible locations. She will have to decide for the best location to produce her rugs. Charlie forecasts the demand for her rugs will be 20 rugs per week in the first year. Charlie must decide the best way to sell her luxury rugs when she starts producing them. The three options are selling through her own shop, selling online by setting a website, selling to a wholesaler which sells rugs to many retailers in country. बहुत छोटा केस है. Appendix 1. I have been told that I need to produce a cash flow forecast. This will be important because the rugs are expensive to produce. I will need to hold inventory of raw materials as well as finished goods before they are sold. Please tell me what to include in cash inflows and outflows in the cash flow forecast. I do not want to run out of the cash and have to apply for an overdraft. I already plan to take out a bank loan to set up the factory. फिर हमें जो है वो पॉसिबल लोकेशंस का अपेंडिक्स दिया हुआ है, जिसमें रेंट बताया हुआ है, एक का $400, एक का $1,000. ऑल फिगर्स आर फॉर 1 वीक. एक में $200 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, एक में $400. नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 4 पे $800. नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 8 पे $800. फोरकास्ट मैक्सिमम आउटपुट 20 रक्स 40 रक्स. पॉसिबल इफेक्ट ऑफ रेगुलर पावर कट्स 20% रिडक्शन इन फोरकास्ट आउटपुट यानी कि 18 हो गया. 25% रिडक्शन इन फोरकास्ट आउटपुट यानी कि 32 हो गया. Appendix 3 newspaper article in Main News 3 January 2025. The government in country B reduced taxes last year to help the economy to grow. For example, the taxes on people income decreased by 5% and taxes on business profits decreased by 2%. The government is concerned that the economy is starting to grow too fast. Banks are increasing their interest rates from 4% to 7%. This will have different impact on different businesses. ठीक है बेटा, छोटा सा केस है, बहुत ही ज्यादा छोटा केस है. इतना छोटा केस होता है तो मुश्किल हो जाता है हमारे लिए पॉइंट्स उसी केस में से निकालना. तो कोशिश दुआ करेंगे केस आपके पास जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो. अब क्वेश्चंस पे आते हैं. साथ साथ क्वेश्चंस के साथ साथ हम थोड़ा सा पैटर्न को भी डिस्कस करेंगे. विच सेक्शन इज दिस? सेक्शन से मुराद बेटा आपका मकसद नहीं समझा क्वेश्चन का. सेक्शन से क्या मतलब है? अच्छा, एक्सप्लेन 4 reasons why new businesses are at a greater risk of failing than existing businesses. बेटा सबसे पहले तो ये बताइए, is this question a generic question or the applicative one? ये generic question है या applicative question है? This is a complete generic question. A generic question में we are not supposed to give the application from the case. ठीक है, हमें केस से एप्लीकेशन देने की जरूरत यहाँ पर नहीं होती. ठीक है, तो इसमें जर्नल आंसर्स आपको देने हैं.
ठीक है, तो क्या अब देखो इसकी की बड़ी सिंपल है इस क्वेश्चन की कि भाई 4 रीजन है, सबके दो दो मार्क्स हो गए, सिंपल है क्योंकि इसमें एप्लीकेशन नहीं है। तो एक पार्ट आप दे, एक पॉइंट दे और उसको एक्सप्लेन करें जो उसका एनालिसिस बन जाएगा। तो अब क्या रीजन हो सकता है न्यू बिजनेसेस के लिए? एक तो आप कह सकते हो जी लैक ऑफ फाइनेंस, डिफिकल्ट टू रेज फाइनेंस या लैक ऑफ फाइनेंस, सब एक ही बात हो गई ना। लिक्विडिटी भी फाइनेंस में ही आ गया बेटा। लिक्विडिटी को मैं थोड़े डिफरेंट तरीके से यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कैश फ्लो प्रॉब्लम्स, राइट। और इसमें मैं ये लिख सकता हूँ कि भाई जो, नहीं हाई कंपटीशन, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा, हाई कंपटीशन तो सबके लिए होगा ना। लैक ऑफ मैनेजमेंट स्किल्स भी शायद सही नहीं होगा, क्योंकि जो अगर इस पर्टिकुलर केस की बात कर, हाँ लैक ऑफ एक्सपीरियंस आ जाएगा। देखो एक्सपीरियंस एंड मैनेजमेंट स्किल्स में डिफरेंस है, क्योंकि ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी जो ये जो चार्ली धीस के पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी होंगे जब वो 10 साल से मैनेजर थी एक जगह पे। तो हाँ, लैक ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग हर ओन बिजनेस वो उसके पास नहीं था। जो भी नया बिजनेस होता है उसमें नहीं होता ना, तो हम, जी जी बेटा जेनेरिक है, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि ऐसा भी तो हो सकता सर है ना। जी बेटा। साइज ऑफ द फर्म भी होता है ना इसके लिए। साइज ऑफ द फर्म बेटा, नया बिजनेस तो छोटा ही होगा ना, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि नया बिजनेस छोटा क्या होगा। अच्छा हमने बेटा, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल बोल सकते हैं? इकोनॉमी ऑफ स्केल भी नहीं आएगा यहाँ पे। अच्छा हमने, आप देखो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो, मैं जैसे एक एग्जांपल दे रहा था ऊपर से कि एक नया बिजनेस ऐसा भी तो हो सकता है कि उस नए बिजनेस को स्टार्ट करने वाला जो ओनर है, यानी जो ऑन्टरप्रिनोर है, वो हाईली एक्सपीरियंस्ड हो, ठीक है ना। हाँ लेकिन, या हाईली स्किल्ड हो, लेकिन लैक ऑफ एक्सपीरियंस हो रनिंग अ बिजनेस। हाँ ये आप कह सकते हो कि वो, उसको अपना बिजनेस नया बंदा जो है उसको मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं है या इस तरह। अच्छा, एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है, लैक ऑफ रिसर्च। अच्छा एडवर्टाइजिंग भी दे सकते हो आप कि, और उसको कनेक्ट कर सकते हो कि भाई सिंस उसके पास इनिशियली उसके पास इतने पैसे नहीं है, या इनिशियली उसका रेवेन्यू इतना नहीं है कि वो बहुत हैवीली इन्वेस्ट कर सके एडवर्टाइजिंग के अंदर। ठीक है, ये भी आप कह सकते हो। ठीक है। अच्छा एक और भी पॉइंट यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं, मैं यहाँ पे अलग से कर देता हूँ, लैक ऑफ रिटेन्ड प्रॉफिट्स। हाँ बिल्कुल, ये अच्छा पॉइंट है, कस्टमर लॉयल्टी। सर लेस ब्रांड अवेयरनेस बोल सकते हैं? लेस व्हाट? ब्रांड अवेयरनेस। हाँ आपके ब्रांड की अवेयरनेस नहीं है, ठीक है बोल सकते हैं। ये एक अच्छा पॉइंट है, कस्टमर लॉयल्टी टू एग्जिस्टिंग बिजनेसेस। जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं, कस्टमर उनसे इतने लॉयल है कि नया बिजनेस का प्रोडक्ट वो ट्राई ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये इतने सारे पॉइंट्स हमारे पास हो गए, इनमें से हम सिंपली कोई भी, अब एक पॉइंट में अगर फॉर एग्जांपल लैक ऑफ फाइनेंस है, इसको मैं आपको समझा के दिखा, लिख के बता देता हूँ कि किस तरह से आपने इसको आंसर फॉर्म में लिखना है। पॉइंट है ना, ठीक है। जी 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 बेटा, प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई पॉइंट आ सकता है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट पता नहीं है ना, तो जनरल बात होती है ना, कोई भी बिजनेस हो सकता है। आप ये कह सकते हो कि प्रोडक्ट एक्सेप्टेबिलिटी इन द मार्केट कह सकते हो। हाँ चेंज इन ट्रेंड के आप जिस, नहीं चेंज इन ट्रेंड तो बेटा एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए भी आएगा ना।
सर जी बेटा। ये फाइनेंस वाला तो हम अलग से भी पॉइंट लिख सकते हैं ना, लैक ऑफ फाइनेंस। हाँ हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। अब देखो बेटा, ये यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बिला वजह थोड़ा सा छोड़ के उसको मैंने थोड़ा लंबा किया। यहाँ पे जगह मैंने छोड़ी थी। अब ये अगर ऐसी सिचुएशन में आप आ जाते हैं ना, तो अब आप क्या करेंगे कि आप थोड़ा सा, आप जिससे कि है ना, मुझे लिखना है एन एक्सटर्नल सोर्सेस, इस तरह से करना अलाउड है। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। अगर आप इतना आगे निकलते हैं, कोशिश करेंगे ये भी ना करें, लेकिन अगर इतना हो जाता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट। नाउ लेट्स सी पार्ट बी, जिसमें सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, ये भी बता दूं। Consider the following two types of business organization that Charlie should choose for her new business. Which type of business organization should Charlie choose? Justify your answer. सोल ट्रेडर एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। बेटा देखो, इसमें आपके पास होती है लेवल मार्केट। आपके पास 3 लेवल्स होते हैं। ठीक है, लेवल वन में आपको मिलते हैं 1 से लेके 4 तक मार्क्स। फिर होता है लेवल 2, जिसमें आपको मिलते हैं 5 से लेके 8 तक मार्क्स। फिर होता है लेवल 3, जिसमें आपको मिलते हैं 9 से लेके 12 तक मार्क्स। ठीक है। अच्छा, लेवल 1 का मतलब क्या होता है? लेवल 1 का मतलब है कि आपने एक नॉलेज का पॉइंट दे दिया, एक आपने एप्लीकेशन का पॉइंट दे दिया, एक आपने एनालिसिस का पॉइंट दे दिया। ठीक है, अगर आपने इतना भी कर दिया तो वो आपको 2 मार्क्स, 3 मार्क्स डिपेंडिंग ऑन पे दे देगा। फिर अगर आप लेवल 2 की बात करते हैं ना बेटा, तो यहाँ पे आप नॉलेज के 2 पॉइंट एटलीस्ट, 2 एप्लीकेशन हो गई या एक भी एप्लीकेशन है, 2 एनालिसिस। अगर आप 2 एनालिसिस दे देते हो तो आप देखो आ जाते हो लेवल 2 के अंदर। लेवल 2 में आपको मैक्सिमम जो मार्क्स मिलेंगे वो मिलेंगे 8 मार्क्स। एक बार यहाँ पे याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि लेवल 2 में अगर अगर लेवल 2 में आप 2 एनालिसिस की मैंने बात की, आप दोनों एनालिसिस एक ही पॉइंट पे दे देते हो तो आपको मैक्सिमम 7 मार्क्स मिलेंगे और आप वहीं पे रुक जाएंगे, उससे आगे आप नहीं बढ़ सकते। राइट। लेकिन अगर आप एनालिसिस 2 अलग अलग पॉइंट्स पे देते हो, जैसे इसमें 2 पॉइंट्स है ना, आप सोल ट्रेडर को डिफाइन कर देते हो, सोल ट्रेडर में एनालिसिस दे देते हो, मल्टीपल एनालिसिस दे देते हो आप। अब आप सोल ट्रेडर को बहुत अच्छे से डिफाइन कर दो। आप बोलोगे जी क्योंकि हमें 3 एनालिसिस देने हैं लेवल 3 के लिए फॉर एग्जांपल, तो मैं सोल ट्रेडर मुझे बहुत अच्छा आता है और मैं सोल ट्रेडर को बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन कर दूं तो मुझे मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। राइट। मैक्सिमम 2 आपने देने हैं इसमें, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, तो मैक्सिमम 2 एनालिसिस आपने एक में दे दिए। फिर दूसरे में दोगे, क्योंकि जब तक आप सोल ट्रेडर में, जैसे पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में सोल ट्रेडर के एनालिसिस दे के, जब तक मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एनालिसिस नहीं देता, मैं इवैल्यूएशन नहीं लिख सकता। क्योंकि इवैल्यूएशन तो मैं उसी वक्त लिखूंगा ना जब मैं दोनों के बारे में बताऊंगा। इवैल्यूएशन यहाँ पर क्या है? रिकमेंडेशन है। तो रिकमेंडेशन या कंक्लूजन तो मैं उसी वक्त दे सकता हूँ ना जब मैं दोनों के बारे में बता दूं। और जब तक मैं उस लेवल पे नहीं पहुंचता कि मैं दोनों के बारे में बता दूं, मैं कभी भी लेवल 3 का आंसर नहीं लिख सकता। राइट। तो अगर अब आपने ऊपर अपने एनालिसिस प्रॉपर नहीं दिया और नीचे आप बेहतरीन से बेहतरीन इवैल्यूएशन, कंक्लूजन या रिकमेंडेशन लिखकर भी आ गए, स्टिल यू वोंट स्कोर मोर देन 6 मार्क्स। ठीक है बेटा, ये बात समझ आती है, क्योंकि आप लेवल 3 में एंटर ही नहीं होंगे। ये बात समझ आती है, बात याद रहेगी।
कि लेवल 3 में एंटर होने के लिए जरूरी है कि उसमें अगर 2 ऑप्शंस हैं या 3 ऑप्शंस हैं तो उनके आपको एनालिसिस देने हैं, वरना आप लेवल 3 में एंटर ही नहीं होंगे। लेवल 3 में अगर आप एंटर ही नहीं हुए तो एग्जामिनर आपका कंक्लूजन या रिकमेंडेशन पढ़ेगा ही नहीं। जब वो जिस चीज को पढ़ेगा ही नहीं तो उसके तो मार्क्स है ही नहीं ना। ठीक है बेटा, लेवल 2 में तो आपने 2 एनालिसिस दे दिए ना, लेवल 2 में आ गए आप। अब लेवल 3 में आने के लिए, अब देखो मैंने आपको क्या कहा, आप सोल ट्रेडर में ही 2 एनालिसिस दे दो। अब कभी कभी क्या होता है, देखो एक और चीज भी समझ लो, इसको अप्लाई ना कर देना, सिर्फ समझा रहा हूं। कई मरतबा क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स आके बोलते हैं भाई तो आधा सवाल छोड़ के आया आधा। अच्छा फिर वो पास भी हो जाते हैं, बोलते हैं यार मैंने तो आधा आधा क्वेश्चन छोड़ा था, मैं कैसे पास हो गया। तो होता ये है कि हो सकता है कि उन्होंने ए पार्ट तो बहुत अच्छे लिखे, बी पार्ट में उन्होंने क्या किया, अगर वो लेवल 2 में पहुंच भी गए, वो लेवल 3 में बेशक नहीं पहुंचे, उन्होंने आधे नीचे छोड़ दिया सवाल, लेकिन स्टिल उनको 7 मार्क्स तो मिल जाएंगे ना। दोनों पॉइंट्स के दो दो एनालिसिस, तो दोनों पॉइंट्स के दो दो एनालिसिस लिख के अगर तुम अपनी रिकमेंडेशन या वो दोगे ना कंक्लूजन, वहां पे तो फिर आपको बेस्ट, आपको बेहतरीन मार्क्स, मतलब आप 11 और 12 पे यानी कि लेवल 3 की आप अपर लेवल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब देखिए सोल ट्रेडर में आपको यहाँ पे, जी बेटा आप कुछ पूछ रहे। जी बेटा बोलो। खैर मैं सोल ट्रेडर आपको लिख के बताता हूँ, रुकिए। जी जी बेटा अपोजिट लिख सकते हैं ना, अपोजिट लिखेंगे बिल्कुल। सर इसका सिर्फ एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखना है या फिर कंक्लूजन भी साथ लिखना है? नहीं नहीं कंक्लूजन नहीं लिखना, कंक्लूजन तो नीचे जाके लिखेंगे ना बेटा। ओके सर। सर इसमें सिर्फ दो दो एडवांटेजेस आएंगे ना? आप डिसएडवांटेज लिखते हैं, कोई मसला थोड़ी है। आप दो दो डिसएडवांटेज लिख दो भाई, एनालिसिस में ऐसा थोड़ी होता है कि एडवांटेज है डिसएडवांटेज है। अच्छा मतलब एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज लिख दें, सही। ये भी कर सकते हो। सर जो केस स्टडी में नेम गिवन होता है बिजनेस का वो साथ लिखना जरूरी है? नहीं, किसने कहा? सर वो मिस बता रहा था। नहीं नहीं ऐसा नहीं, कोई भी चीज ऊपर से लिख सकते हो बेटा केस से आप। सर जस्टिफाई सिर्फ एक को करना है ना, यहाँ तो सोल ट्रेडर को, यहाँ प्राइवेट हाँ हाँ लिमिटेड को। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सर जी वैसे अहमद सही कह रहा है, मैं बेटा देखिए बात ये है ना कि
अब बिजनेस का नाम लिखूं या उस देखो यहाँ पे बिजनेस नहीं तो उस बंदी का नाम लिख दिया तो बात तो वही हो गई ना। ठीक है। ओके सर। बेटा मैं मल्टीपल स्कूल्स में पढ़ाता हूँ। अब देखें अगर आप इसको पढ़ें, if Charlie chooses to run business as a sole trader, she will have complete freedom to implement her ideas about what types of rugs to be produced. ठीक है, यहाँ पे ऊपर से कॉन्टेक्स्ट भी आ गया ना, रग्स प्रोड्यूस करने की बात हो रही है। Moreover, being a sole trader will also enable her to enjoy all the profits as she will be selling to luxury market। वो लग्जरी मार्केट में ऊपर देखो मेंशन हुआ था केस में कि वो लग्जरी मार्केट में रग्स बेचेगी, राइट। ये अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, विल मेक लग्जरी रग्स, राइट। तो सारे प्रॉफिट्स उसके होंगे, लेकिन ऑब्वियसली हमने एक काउंटर भी लिख दिया यहाँ पे कि एज अ सोल ट्रेडर शी विल आल्सो हैव टू बेयर द डिसएडवांटेज ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है। इसी तरह नीचे आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को भी समझा सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप क्या लिखेंगे कि भाई लिमिटेड लायबिलिटी होगी, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी मिल जाएगी उसको, लेकिन ये कि आप लिख सकते हो कि वहां पे डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, राइट। जी बेटा। सर वैसे आपने पहले वाले में तो तीन तीन पॉइंट्स दे दिए, हाँ तो मतलब लिमिट कुछ नहीं है, जितने लिख सकते लिखो। देखो, लेकिन देखो आप ये नोटिस करो कि मैंने 3 पॉइंट्स देने के बाद भी एक लाइन भी एक्सीड नहीं की। जी मतलब थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट एक्सप्लेन करें, ज्यादा लंबी नहीं करें। और देखो मैंने एक्सप्लेन प्रॉपर किया ना, वो पॉइंट क्लियरली डिफाइन हुआ या नहीं हो रहा, ये भी देखो साथ अच्छा सर। कि वो अगर देखो आप इसको ऐसे रीड करो कि जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है वो, आप ये सोचो ना कि आपको इन चीजों के बारे में नहीं पता और आप ये पॉइंट पढ़ रहे हो, तो क्या वो पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आ रहा है। सही सर। ठीक है, इस चीज को फोकस करो जब भी आप आंसर लिख रहे हो ना बेटा, ये चीज फोकस करो कि जो आपका एग्जामिनर है उसको पढ़ के ये नहीं सोचेंगे उसको तो ऑब्वियसली एग्जामिनर है वो तो खुद से समझ लेगा, नहीं ऐसा नहीं। वो इसी तरह देखेगा कि वेदर यू आर एबल टू मेक हिम अंडरस्टैंड और नॉट। सर ठीक है, डेफिनेशन अब देख, डेफिनेशन नहीं लिखनी होती ना सोल ट्रेडर वगैरह किसी की? नहीं नहीं नहीं, डेफिनेशन क्यों दोगे। ठीक है, इसी तरह आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एक्सप्लेन करेंगे, फिर आप जाएंगे रिकमेंडेशन में। अब आप कोशिश, अब देखो रिकमेंडेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट काम, रिकमेंडेशन में नॉर्मली आप लोग क्या करते हो कि फॉर एग्जांपल अगर आप सोल ट्रेडर को वो कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, तो वो क्या कर देते हैं जी कि जी बेटा लेवल 3 मैंने बताया, बचा आप लेट हो गए थोड़ा सा, आपने देर से ज्वाइन किया। लेवल 3 मैंने बताया, मैं रिकॉर्डिंग दूंगा तो उसमें से देख लेना। अच्छा देखो रिकमेंडेशन में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर सोल ट्रेडर को सपोर्ट कर दिया, ठीक है, और आपने एक और यहाँ पे पॉइंट लिख दिया, या अगर फॉर एग्जांपल आप जो है वो, चलो हाँ सोल ट्रेडर को हम सपोर्ट कर देते हैं और आप यहाँ पे एक और पॉइंट लिख देते हो, बेनिफिट का पॉइंट लिख देते हो, या लेट सपोज आप सोल ट्रेडर को, हम पार्टनरशिप को, अगर आप वो सॉरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को आप सपोर्ट कर रहे हो,
ऊपर आपने जो है वो बात की थी किसकी, लिमिटेड लाइबिलिटी की। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपने ऊपर लिमिटेड लाइबिलिटी की बात कर दी थी। नीचे आप आगे फॉर एग्जांपल सेपरेट लीगल आइडेंटिटी की बात कर देते हो, या कोई और बेनिफिट उसका बता देते हो कि भाई उसमें जो है कंटिन्यूटी प्रॉब्लम नहीं होता। ऊपर आपने लेट सपोज लिमिटेड लाइबिलिटी, यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे लेट सपोज आपने लिमिटेड लाइबिलिटी और कंटिन्यूटी, इसका आपने फेवर दे दिया था, और काउंटर में लेट सपोज आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन लिख दिया था। सर अब ये भी मिरर वाला वो हो गया सर, आप ऊपर आपने अनलिमिटेड लायबिलिटी लिखी है, नीचे लिमिटेड लायबिलिटी। नहीं बेटा, ये मिरर नहीं है ना, ये मिरर इसलिए नहीं है, इसको जरा अंडरस्टैंड करो, ये मिरर इसलिए नहीं है कि अगर हम बुक भी देखते हैं ना, तो बुक में देखो बेसिकली ये मिरर नहीं है, ये दो चीजें एक दूसरे की, ये मतलब देखो मिरर इमेज का मिरर आंसर का मतलब होता है कि मेरा जो आंसर है ना वो अगेंस्ट हो। मिरर आंसर क्या है कि जैसे मिरर आंसर ये होता है कि जी मैंने ऊपर बेनिफिट लिखा हुआ है कि सारे प्रॉफिट्स उसको मिल जाएं, सोल ट्रेडर में मैंने लिखा है ना कि चार्ली को सारे प्रॉफिट्स मिलेंगे, और जी सर। नीचे रिकमेंडेशन में मैं लिख दूं, रिकमेंडेशन में मैं सोल ट्रेडर का नुकसान लिख दूं कि जी उसको सारे लॉसेस भी खुद बियर करने पड़ेंगे। ये मेरा आंसर है, ठीक है। ये लिमिटेड और अनलिमिटेड लाइबिलिटी तो बेसिकली दो अलग अलग फीचर्स है ना। लिमिटेड लाइबिलिटी जो है वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का फीचर है, और अनलिमिटेड लाइबिलिटी जो है वो सोल ट्रेडर का फीचर है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि जी सोल ट्रेडर का एडवांटेज है कि सोल ट्रेडर को जो है वो सारे प्रॉफिट्स मिलेंगे, और सोल ट्रेडर का डिसएडवांटेज है कि उसको सारे लॉस बेयर करने पड़ेंगे, ये मेरा आंसर है, राइट। सही, तो अलग अब अलग हो गया रेकमेंड, पॉइंट्स, मतलब प्रॉफिट्स ये एक ही अलग आप अलग बोल रहे हैं। पॉइंट्स हो गए ना। हाँ तो मिरर तो वो होता है ना, मतलब आपने ऊपर लिखा कि बेनिफिट में लिखा कि स्टोरेज कॉस्ट ज्यादा होगी, नीचे आपने लिखा कि इसकी ड्रॉबैक में लिखा कि आप एक बेनिफिट एक ड्रॉबैक लिख रहे हैं, तो एक ड्रॉबैक में आपने लिख दिया कि इसमें स्टोरेज कॉस्ट कम हो जाएगी। ये होगा ना मेरे ख्याल से। ये भी मिरर है, और जो एडवांटेज जिससे प्रॉफिट की बात कर रहे हो वो भी मिरर है ना बेटा। जब आप कह रहे हो कि सारे प्रॉफिट और सारे प्रॉफिट सोल ट्रेडर के हैं, तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है ना कि सारे लॉसेस भी उसके हैं। अच्छा, मतलब ये आपने कोई आप ऐसा बोले पॉइंट उसको तो नहीं ज्यादा है। एनालाइज कर दिया, हमने ज्यादा ही आगे बस एनालाइज कर दिया है ना सर। नहीं नहीं, ये हाँ, इसको थोड़ा सा घुमा के लिखो, अल्फाज बदल दो, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम वर्ड्स अगर लिखोगे कि नॉट शेयरिंग एनी प्रॉफिट, शेयरिंग नॉट शेयरिंग एनी लॉसेस, ये तो फिर मिरर बन गया ना। अच्छा, अब देखो जो चीज मैं समझा रहा हूँ कि अब लेट सपोज यहाँ पे आके आपने प्राइवेट लिमिटेड को सपोर्ट कर दिया, तो आपको क्या लगता है कि आपने यहाँ पे आके पार्टनरशिप में अगर हम एडवांटेज एडीसी कैन रीच लार्ज कैपिटल, हाँ पार्टनरशिप में लार्ज कैपिटल बिल्कुल मिल सकता है। आगे क्या लिखा है आपने, डिसएडवांटेज में शेयरिंग ऑफ, नहीं ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं है ना, कैपिटल आ रहा है और पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयर हो रहा है, तो ये तो अलग बात हो गई ना बेटा। अच्छा अब देखो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैंने रेकम, अब ये जो चीज बता रहा हूँ ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। रिकमेंडेशन में मैंने प्राइवेट लिमिटेड का एक बेनिफिट बता दिया। लोग क्या करते हैं कि जी रिकमेंडेशन दे दी, जी प्राइवेट लिमिटेड अच्छा है, ऊपर तो पॉइंट्स लिख दिए हैं, नीचे लिख दिया जी प्राइवेट लिमिटेड अच्छा है, क्योंकि जो बेनिफिट ऊपर मैंने दिए उसके अलावा भी प्राइवेट लिमिटेड में एक और बेनिफिट है कि सेपरेट लीगल आइडेंटिटी मिल जाएगी। उसके बाद आंसर अपना क्लोज कर देते हैं। आप ये करोगे तो आपको 9 से ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब बाकी 3 मार्क्स के लिए क्या करना है, ये पता है किसी को, बाकी 3 मार्क्स के लिए क्या करें। वो जो आपने चूज नहीं किया उसके बारे में बताओ, क्यों नहीं किया। जी, जो आपने चूज नहीं किया उसके बारे में भी तो बताओ कि वो चूज क्यों नहीं किया। वो नहीं बताओगे तो 9 से ऊपर मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये मार्किंग स्कीम कहती है। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड तो बता दिया हमने, अब हमें यहाँ पे सोल ट्रेडर का एक डिसएडवांटेज भी बताना पड़ेगा। जैसे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने सोल ट्रेडर के लिए क्या पॉइंट्स लिए हैं, मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिए थे भाई प्रॉफिट और आइडिया इम्प्लीमेंटेशन। तो मैं अब सोल ट्रेडर का एक लॉस ले सकता, और अनलिमिटेड लाइबिलिटी मैं ले चुका हूँ, तो एक और लॉस क्या ले लूँ उसका, मैं एक और क्या ड्रॉबैक है सोल ट्रेडर का। नहीं, आइडिया तो खैर आ सकता है, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ
कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैनेजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इसके ऊपर होगी, या फिर मैं यहाँ पे लैक ऑफ कंटिन्यूटी भी ले सकता हूँ ना। लिमिटेड आइडियाज वैसे सही है, लेकिन ना लिखो तो अच्छा है, क्योंकि आजकल तो बेटा आइडियाज मिल जाते हैं फिर भी। हाँ ये है कि मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी या मोर डिसीजन मेकिंग बर्डन, ये चीज आप बात कर सकते हो। ठीक है, तो पॉइंट समझ में आया कि जो सेलेक्ट कर रहे हो उसकी तो बात करनी ही है, जो सेलेक्ट नहीं कर रहे उसकी भी बात करनी है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन टू फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट फॉर चार्ली व्हेन शी इज ऑपरेटिंग हर न्यू बिजनेस। अब ये एप्लीकेटिव है या जेनेरिक है? जी भाई, ये कौन सा क्वेश्चन है, जेनेरिक है, एप्लीकेटिव? जेनेरिक नहीं, ये एप्लीकेटिव है भाई, एप्लीकेटिव। ये एप्लीकेटिव है। आप देखें, क्योंकि दो फंक्शंस अब स्पेसिफिकली चार्ली से पूछे जा रहे हैं, व्हेन ऑपरेटिंग है न्यू बिजनेस। तो क्या आप दो फंक्शंस लिखें भाई? प्लानिंग, प्लानिंग में वो क्या प्लानिंग करेगी? बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। सर इतना छोटा अगर हम फंक्शन लिखे हैं, एक ही वर्ड, दो वर्ड का, इतना चलता है? चलता है, चलता है, उसमें कोई मसला नहीं। उसी को सेंटेंस फॉर्म में लिख दो, वर्ड वर्ड लिख दो, कोई फर्क नहीं। ठीक है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। फिर अच्छा, फिर दूसरा फंक्शन क्या हो सकता है? कोऑर्डिनेटिंग हो सकता है। ठीक है जी, अब यहाँ पे मैं ब्रैक वो कॉमा डाल के लिख सकता हूँ। कंट्रोलिंग हो सकता है, क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट्स। ऑर्गेनाइजिंग हो सकता है, और कमांडिंग हो सकता है। कमांडिंग में लीडिंग आ जाता है। ठीक है, डेलीगेशन फंक्शन नहीं होता बेटा। फंक्शन पांच होते हैं मैनेजमेंट के: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट मैनेजर का काम नहीं है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम। ठीक है, कंट्रोलिंग की डिटेल ये होती है कि बेटा मैनेजर ही कंट्रोल करता है इस चीज पे कि उसके जो बाकी फंक्शंस है वो सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जो उसने रिसोर्सेज एलोकेट की हैं वो प्रॉपरली, जो उसके प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी तरफ बिजनेस को लेके जा रही है नहीं जा रही है, कंट्रोलिंग है। इसमें मार्किंग किस बेसिस पे होती है? टू मेक श्योर ओनर डिसीजन इज बीइंग कैरिड आउट। ओनर नहीं, ओनर डिसीजन नहीं बेटा, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा देखो, इसमें मार्किंग अब आप देखें ना, इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें आपको एक एक यहाँ पे ये एक एक पॉइंट चार चार मार्क्स का है। तो यहाँ पे आपको फंक्शन लिखने का 1 मार्क्स मिलेगा और एक्सप्लेनेशन के 3 मार्क्स मिलेंगे, जिसमें से एक आपका एप्लीकेशन का हो गया और 2 नॉलेज के हो गए, तो सॉरी 2 उसके एनालिसिस के हो गए। राइट, नॉलेज का तो यहीं पे मिल गया आपको जब आपने फंक्शन का नाम लिखा है। सही है, यहाँ पे लेवल मार्किंग नहीं है, लेवल मार्किंग पार्ट बी में होती है। चले, टू कीप सुपरविजन। बेटा सुपरविजन इज बेसिकली कंट्रोल। सुपरविजन क्या है, वो कंट्रोलिंग ही तो है। वोकैबलरी भी तो यूज करो ना, बिजनेस वाली जो बुक वाली वोकैबलरी है वो भी तो यूज करो ना बेटा। आपका आंसर सुपरविजन सही है, लेकिन उसी को तो मैं कंट्रोलिंग कह रहा हूं। अब ये इसलिए सर कह रहा हूं कि सुपरविजन गलत नहीं है, लेकिन ये बात मैंने इसलिए इम्प्रोवाइज की कि ऐसा नहीं हो ना कि तुम एक फंक्शन कंट्रोलिंग लिख दो और एक फंक्शन सुपरवाइजन लिख दो, वो तो गलत हो जाएगा, एक ही पॉइंट मिलेगा उसमें। राइट, यूजिंग अपेंडिक्स टू एंड अदर इंफॉर्मेशन, कंसिडर द फॉलोइंग 2 पॉसिबल लोकेशन फॉर सियाज न्यू फैक्ट्री। अब इस तरह का क्वेश्चन बड़ा आसान होता है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इंसर्ट में आपको देखो लोकेशन के पॉइंट्स दिए हुए हैं, पहले रेंट की बात कर लो। ठीक है, फिर आप जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट की बात कर लो। फिर आप जो है वो वेज कॉस्ट की बात कर लो। यहाँ पे वेज कॉस्ट जो है वो $400 होगी, यहाँ पे $800 होगी। फिर फोरकास्ट आउटपुट की बात कर लो,
तो इसका आउटपुट कितना बनेगा? इसका आउटपुट बनेगा 32 रग्स, नहीं 30 रग्स। इसका आउटपुट जो है लोकेशन बी का आउटपुट बनेगा 30 रग्स। अच्छा ये समझ में आया 30 रग्स कैसे बनेगा? 25% रिड्यूस हो जाएगा और इसका बनेगा 16 रग्स। ब्रेक इवन आ सकता है बेटा। ठीक है, अब देखें लोकेशन ए के लिए कौन सी चीज, रेंट जो है वो बी का पॉजिटिव है। ये मतलब हम ये कहेंगे कि अगर हम रेंट की बात करें तो ए बेहतर है। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट की बात करें तो कौन सा बेहतर है? इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट में कौन सा बेहतर है बेटा, ए और बी? ये बताओ, ए की इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कम है या बी की? कंफ्यूज? सर जी एक ही कम है, मैं बी लिख रहा हूं। हाफ कम है। कंफ्यूजन हुई नहीं हुई? सर ने बी क्यों लिखा? हमने बेटा हमारी यहाँ कंफ्यूजन हुई कि 400 200 से कम कैसे हो सकता है? तो भाई आउटपुट से डिवाइड नहीं भी करो, सर आउटपुट आउटपुट से डिवाइड अगर नहीं, आउटपुट से तो दोनों में 10% आ रहा है। 20 रक्स पे 200, 40 रक्स पे 400। आउटपुट पे तो सेम है परसेंटेज। लेकिन अगर आप रेंट के हिसाब से देखो तो रेंट के हिसाब से ये 50% है, जबकि ये 40% है। इसकी जगह बड़ी है, अच्छा, इसकी जगह छोटी है, तो यहाँ पे ज्यादा हुई अब ना समझ कॉस्ट। लगी सर। सही है? जी सर। समझ नहीं आई सर। हमने मारिया क्लियर है? आप लोगों ने ये बोला था। अच्छा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की बात करें तो चलो दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? 4 लोग हैं 20 रक्स ला रहे हैं, 8 लोग हैं 40 रक्स ला रहे हैं। सही है भाई, ये भी सेम हो गया। सर अच्छा ये भी, हाँ। लेकिन हम पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ पावर कट देखें तो वो यहाँ उसमें हमारे पास ए बेहतर है, क्योंकि ए में टोटल को जो हमारा आउटपुट है उससे 20% रिडक्शन हो रही है, जबकि बी में 25% रिडक्शन हो रही है। ठीक है? अच्छा उसने दिया हुआ है कुछ और रेलिवेंट डेटा। कुछ और रेलिवेंट डेटा क्या है? अब देखो यहाँ पे ए बेहतर हो गया बी के मुकाबले में। कुछ और रेलिवेंट डेटा की बात करूं तो वो क्या कह रहे हैं, वापस समझा देते हैं। देखें, उसको ज्यादा इन्वेंट्री होल्ड करनी है। इस पॉइंट को कंसीडर करूं तो कौन सी बेहतर हो गई? बी। अब ये बॉल आपके कोर्ट में आ गया। अब आपकी मर्जी है, आप ए को सपोर्ट करो या बी को सपोर्ट करो। पॉइंट्स आपके पास हैं, पॉइंट्स लिखो और किसी एक को सपोर्ट करो। वैसे आई वुड सजेस्ट कि इस अपेंडिक्स की बेसिस पे आप पहले ए को बेहतर बता दें और फिर नीचे जाके जब कंक्लूजन दो तो ये वाला पॉइंट यूज करो और उससे बी को सपोर्ट कर दो। परसेंटेज वाली चीज बता दो। देखो बेटा यहाँ पे जो है ना $200 आपके पास कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ पे $400 है। यहाँ पे रेंट $1000 है, यहाँ पे $400 है। यानी कि ये जगह बड़ी है ना, क्योंकि देखो नीचे इसमें वर्कर्स भी ज्यादा हैं, इसमें प्रोडक्शन भी ज्यादा है, इसका मतलब ये जगह बड़ी है ना। तो बड़ी जगह है और उसका जो आपको कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो कम है उसके मुकाबले में, परसेंटेज में रेंट के परसेंटेज में देखो तो। लेकिन लोकेशन ए में रेंट के परसेंटेज में 50% कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमने बात की थी। अच्छा प्रीमिसेस का साइज तो मेंशन नहीं है, तो आपने इलेक्ट्रिसिटी में कैसे बोला कि 1000 वाले का साइज बड़ा है? क्या पता वो मेन सिटी में हो। बेटा ये ऐसे बोला कि लोकेशन बी में देखो प्रोडक्शन ज्यादा है ना। सर इस प्रोडक्शन क्वेश्चन में हम ज्यादा है सारी उससे चीजें लिंक करके करेंगे, इसमें मतलब हम पूरी डेटा हाँ यूज लिंक करेंगे। करके कर, बिल्कुल लिंक करके करेंगे क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है विद द हेल्प ऑफ अपेंडिक्स 2। ठीक है बेटा, अब तो रहमानी बात समझ आई। नीचे देखो आउटपुट ज्यादा है ना, आउटपुट की बेसिस पे मैं कह रहा हूँ कि वहां पे, और देखो वर्कर्स भी ज्यादा काम कर रहे हैं यहाँ पे।
उस बेसिस पे मैं कह रहा हूं कि वो लोकेशन बड़ी है, राइट। अच्छा जी, क्वेश्चन पे ठीक है। ये तो ये इस तरह का क्वेश्चन बहुत इजी होता है, सीधा सीधा आपको वहां से उठा के लिखना है ना, ये तो बड़ा आसान हो गया। अब 3 देखते हैं। वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री। अगेन एप्लीकेटिव क्वेश्चन, ये भी एप्लीकेटिव है बेटा, याद रखिएगा। ये डिसएडवांटेज नहीं है, वो सॉरी वो जेनेरिक नहीं है। अगेन वही चीज है, 1 3 1 3। तो ज्यादा इन्वेंट्री होल्ड करने का क्या बेनिफिट है भाई? यस, सडन डिमांड of drugs can be met। इसमें तो रिकमेंडेशन है ही नहीं है बेटा, 3A में कौन सी रिकमेंडेशन? ए पार्ट में कहां से आ गई रिकमेंडेशन जी बेटा? सर ये जो क्वेश्चन है जिसमें हमें 4 डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स बताने थे, जो ऊपर हमने किया था। पहला वाला। हाँ पहला वाला। सर उसमें मेरे को ये कंफ्यूजन होती है कि जो एनालिसिस हम करते हैं वो उसमें कितने डिफरेंट, मतलब काफी बार सेम सेम हो जाती है, मतलब समझ नहीं आता कि क्या डिफरेंट लिखें। वो तो बेटा डिपेंड करता है ना कौन सा पॉइंट है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा ना। क्वेश्चन 2 पार्ट बी, क्वेश्चन 2 पार्ट बी में क्या मसला हो रहा है बेटा? देखो लोकेशन ए में पहले आप लोकेशन देखो, यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए ना, एप्लीकेशन रिपीट कर सकते हैं डिफरेंट क्वेश्चन में बेटा, वो देखें आप, साथ साथ में रिपीट कर ही रहा हूँ। देखिए लोकेशन ए में आप दोनों में, ए और बी दोनों में आप इन पांचों की बात करो, ठीक है। आप इन पांचों की बात कर दो, नीचे जाके इसकी बेस पे आप किसी एक को, फिर आप जो है ना अपने कंक्लूजन में ये वाला पॉइंट यूज करके बी को सपोर्ट कर सकते हो, या फिर आप इन्वेंट्री के पॉइंट को रख के कि भाई इन्वेंट्री में नुकसान है, ज्यादा इन्वेंट्री बना के उससे आप जो ए को सपोर्ट कर सकते हो। बेटा इंपॉर्टेंट सब होता है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ना पूछा करो, सब इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। कैसे? बस यूनिट 6 पे थोड़ा फोकस ज्यादा करना, ठीक है जी। ये आपके पास पॉइंट्स आ गए, इन पॉइंट्स को उठा के वहां पे दोनों लोकेशन समझाओ और किसी एक को रेकमेंड कर दो। कोई कोई भी एक पॉइंट उठाओ जिससे एक को रेकमेंड करो और दूसरे को। लेकिन अगेन यहाँ पे भी वही बात है बेटा कि रेकमेंडेशन में दोनों चीजें बतानी है। क्या दोनों चीजें बतानी है? वाई टू सेलेक्ट वन लोकेशन एंड वाई नॉट टू सेलेक्ट अनदर, ठीक है। सर ये दोनों चीजें बता, जी बेटा बोले। लोकेशन ए और लोकेशन बी का जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, उसमें हाँ हमें कैलकुलेशन दिखानी है और रिकमेंडेशन में हमें लिखना है। मतलब कैलकुलेशन दिखानी है कि ये वाली कैलकुलेशन इसमें बेहतर है, मतलब पैसे इसमें कम पड़ रहे हैं या फिर दूसरे में ज़्यादा पड़ रहे हैं, ये दिखाना होता है। हाँ, वो तो डिपेंड करता है ना, इसमें दी हुई है, अगर कैलकुलेशन नहीं दी हुई है, सारे क्वालिटेटिव फैक्टर्स दिए हुए होंगे तो क्या करोगे? सर एक डिपेंड बार करता है ये आप करके दिखा दें, सॉल्व करके दिखा दें। बेटा। बेटा वो तो डिपेंड करता है ना, मैं आपको ये सॉल्व करके दिखा दूंगा, मसला नहीं है, लेकिन आपके पास जो क्वेश्चन आया उसमें अगर क्वांटिटेटिव डेटा नहीं दिया हुआ तो क्या करोगे? वही मुझे तो समझ नहीं जो आ भी, रहा ना। बेटा वही मैं आपको कह रहा हूँ ना कि यहाँ पे देखो, आपके पास जो पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे देखो, इसमें क्वांटिटेटिव सारी चीजें तो नहीं है। अब ये अगर न्यूमेरिक डेटा दिया हुआ है तो आप यहाँ पे आपके पास केस में लोकेशन के बारे में जो जो कुछ लिखा हुआ है वो आपने ऊपर लिखना है, और उन्हीं में से किसी एक चीज को उठा के, मतलब सर जैसे यहाँ पे 6 पॉइंट है, 5 पॉइंट ये हो गए और छठा पॉइंट ये हो गया। इन 6 पॉइंट में से 5 पॉइंट्स को आप ऐसा करें कि जी 5 पॉइंट्स को आप यहाँ पे, ये 5 में से 4 पॉइंट्स को आप यहाँ लिख दे और 1 या 2 पॉइंट्स को आप रिकमेंडेशन में लिख दें, सिंपल। उसमें इतना कंफ्यूज होने की क्या जरूरत है? लोकेशन ए और बी के पर दोनों के एक ही पॉइंट्स होंगे लेकिन अलग अलग साइड से होंगे। जाहिर सी बात है एक ही पॉइंट्स होंगे, और जो भाई सर उसका रेंट कम है इसका रेंट ज्यादा है, इस तरह ही लिखोगे ना। जी और बेटा। मतलब सेंटेंसेस में मतलब लिखेंगे या फिर? नहीं नहीं, सेंटेंसेस में लिखना, पैराग्राफ फॉर्म में। सर मतलब हम ऐसे कंपेयर करेंगे, जैसे हम बोलेंगे हमारा जो प्लेस ए है उसकी रेंट कम है बिकॉज बी की 1000 है और उसकी 400 है, ऐसे कंपेयर करेंगे।
ऐसे भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो कि भाई एक का शेयर इतना आ रहा है इस तरह से। सर सर ये जो जी पेपर 2 होता है केस स्टडी बेस, सिर्फ इसी में केस स्टडी से रिलेट करना होता है ना, पेपर 1 में तो जरूरत नहीं होती ना। नहीं नहीं, हाँ बेटा सोर्स को अंडरलाइन कर सकते हो, कोई मसला नहीं। ओके सर, थैंक यू। अच्छा जी। अच्छा भाई, ये तो हमने लिख दिया इसका होल्डिंग इन्वेंट्री का एडवांटेज। और होल्डिंग इन्वेंट्री का डिसएडवांटेज क्या हो सकता है भाई? सर इंक्रीज जी इन ज्यादा इंक्रीज इन करेंगे जिससे स्टोरेज कॉस्ट बढ़ कॉस्ट, जाएगी। एनालिसिस में सेल्स, जी हाँ जी उसका वही। कोई मसला नहीं है, लिख सकते हो। अच्छा, इंक्रीज इन स्टोरेज ऑब्सलीट और कुछ? इंक्रीज इन स्टोरेज कॉस्ट, ऑब्सलीट, डैमेज इन्वेंट्री, इसके अलावा कोई पॉइंट? हैंडलिंग कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पॉइंट सर जी अच्छा होता है। और हैंडलिंग इंश्योरेंस सर कॉस्ट। वर्कर्स भी डिमोटिवेट हो सकते हैं। नहीं नहीं, डिमोटिवेशन यहाँ पे। अच्छा, एक थोड़ा सा मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आंसर बता रहा हूँ, थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ये सारे आंसर आपके सही है बेटा, वो मोटिवेशन वाली जो बात है वो नहीं आएगी यहाँ पे, बाकी सारे सही। सर एक्सप्लेनेशन भी बताएं सर। मैं एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आंसर बता रहा हूँ, देखो। रिलेट कर सकते हो इस पॉइंट को? जो इन्वेंट्री आपने रखी हुई है उसको आपने इंश्योर करवाया हुआ है, तो इंश्योरेंस, ज्यादा इन्वेंट्री होगी तो ज्यादा इंश्योरेंस अगर करवाना पड़ेगा, अगर राइट? सेल नहीं होगी तो इंश्योरेंस का कोई मतलब बर्डन बढ़ जाएगा। बर्डन बढ़ जाएगा। अच्छा, एक और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ। जी बेटा, इससे कनेक्ट कर पा रहे हो? क्योंकि आपके पास बहुत सारा रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, कंज्यूमर की प्रेफरेंस है, आप एक खास किस्म की, जैसे इस बिजनेस की बात करेंगे ना अभी हम, एक खास किस्म की रग बनाते हो और मार्केट में उसका ट्रेंड, उसका फैशन खत्म हो गया, लेकिन आपके पास तो उसी का रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। तो पहले तो आपको उस रॉ मटेरियल को यूज करके बनाना पड़ेगा ना, फिर उसके बाद आप नए ट्रेंड वाली रग्स पे आओगे, राइट? लेकिन अगर आपके पास रॉ मटेरियल कम है, खत्म हो गया, तो आप फौरन से नए, अब जो नया रॉ मटेरियल मंगवाओगे वो नए ट्रेंड के हिसाब से मंगवाओगे। ठीक है, समझ आया पॉइंट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेटा, सर एक बार अपॉर्चुनिटी रिपीट कॉस्ट कर ऐसे देंगे? तो। जी रिपीट कर देंगे एक बार? भाई, देखें, जो पॉइंट आपका है, आपके पास रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है 1,000 रग्स का, ठीक है? अब हुआ ये कि मार्केट में उस तरह की रग बिकना बंद हो गई, उसका ट्रेंड खत्म हो गया, एक नया ट्रेंड आ गया मार्केट में। तो आपको तो पहले अपनी 1,000 रग्स पूरी बनानी पड़ेंगी, फिर आप नए ट्रेंड का रॉ मटेरियल मंगवाओगे ना। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ 200 रग्स का पड़ा हुआ है, तो 200 रग्स कंप्लीट करके आप नए ट्रेंड का मंगवा लोगे, राइट? अच्छा बेटा, सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऐसे आएगी कि जो कैश आपने रॉ मटेरियल इन्वेंट्री में फंसा के रखा हुआ है, उस कैश से आप मार्केटिंग कर सकते थे, राइट? ऐसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी, ठीक है बेटा? सर जी बेटा। एडवांटेज में ये हो सकता है कि हमने पहले से इन्वेंट्री रखी हुई है, तो इन्फ्लेशन से अगर प्राइस ज़्यादा होती है तो हमें पहले से हमारे पास चीप है। हाँ बिल्कुल हो सकता सही। है। अच्छा जी, चले आगे बढ़ते। कंसिडर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द फॉलोइंग थ्री वेज सीआर शुड यूज टू सेल इट्स प्रोडक्ट। सेल थ्रू, ये वही वाली बात है। अब सेल थ्रू ओन शॉप, तो ओन शॉप से बेचने का, अब जल्दी से एक एक फायदा, एक एक नुकसान बताओ। अपनी शॉप से बेचने कस्टमर का का क्या फायदा रिलेशन है? बनेगा, कस्टमर का रिलेशन का फीडबैक ले सकते हैं। हाँ, एक तो गुड कस्टमर रिलेशन हो गया, ठीक है, सही है। नो नो कमीशन। गुड कस्टमर रिलेशन, ठीक है जी। डिसएडवांटेज क्या है अपनी शॉप से बेचने का? रेंट वगैरह और सर स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी। नहीं, क्यों सर, जब खुद बेचेगा तो खुद स्टोर करेगा ना। तो वैसे भी करेगा भाई। ये तो फायदा है, कंट्रोल ओवर मार्केटिंग मिक्स, तो फायदा है ना बेटा। सर सर शॉप के नो रेंट्स वगैरह और वो सेल्स एक्सपेंसिव। फोर्स रखनी पड़ेगी, बेचने वाले लोग रखने पड़ेंगे।
सर नहीं बेटा, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, लोग दुकान पे आके खरीद रहे हैं, ये घर थोड़ी पहुंचा रहे हैं। सर बात बता सर, ये होलसेलर में तो हम जैसे दे देते हैं सर वो उसको, वो खुद एम्प्लॉयज रखने वाला बेटा कॉस्ट, ये एम्प्लॉयज होलसेलर वाला। नहीं है, ये होलसेलर नहीं है, वो कह रहा है वो अपनी दुकान से बेच रहा है, रिटेल कर रहा है। और ये हो सकता है पोटेंशियल सेल्स लॉस, कि बहुत सारे कस्टमर आपकी दुकान के पास आ नहीं सकते क्योंकि आपकी दुकान उनके एक्सेस में नहीं है। बर्डन हो जाएगा बिजनेस पे। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बेटा यहाँ पे नहीं आएगी क्योंकि शॉप पे ये प्रोडक्ट वो नहीं है ना। हाँ, लिमिटेड सेल्स है ना, कि जो लोग आएंगे उनको ही बिकेगा ना। अच्छा, ऑनलाइन बेचने का फायदा। वर्ल्ड वाइड कवरेज। वाइड कवरेज, ठीक है, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज से बाहर कवरेज है। सेलिंग ऑनलाइन का नुकसान, हाई कंपटीशन। क्रिएटिव सोचो यार, अगेन लॉस ऑफ सेल्स। लैक ऑफ कस्टमर ट्रस्ट। नहीं नहीं, अगेन लॉस ऑफ सेल्स, क्योंकि कस्टमर जो है वो क्वालिटी चेक नहीं कर सकेगा, इसलिए वो रिलेक्टेंट होगा। ठीक सर है। जैसे अभी मैंने हाई कंपटीशन का पॉइंट बोला, अब ये अगर पेपर में मैं लिखूं तो उसमें क्या कोई मसला होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, हाई कंपटीशन लिख सकते हो, ऑनलाइन में कंपटीशन ज्यादा होता है। अच्छा, होलसेलर को बेचने के फायदे, नो स्टोरेज लेस कॉस्ट, ठीक है जी। मार्केटिंग कॉस्ट। बेटा नो स्टोरेज कॉस्ट तो नहीं कह सकते हम, नो की जगह लेस क्या लिखूं? मार्केटिंग। नो की जगह क्या लिखूं? लो लिख देता हूं, लो स्टोरेज कॉस्ट। लो स्टोरेज कॉस्ट, होलसेलर को बेचने का फायदा, वो आपसे बल्क में खरीद लेगा, उसको ब्रेक कर देगा। मार्केटिंग कॉस्ट कम होगी। अच्छा, नुकसान क्या होगा भाई होलसेलर को बेचने का? जी, ये अच्छा पॉइंट है। कॉम्पिटिटर लूज का प्रोडक्ट। कंट्रोल, लूज कंट्रोल ओवर मार्केटिंग मिक्स, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और सर एक चीज पूछनी है, मार्केटिंग मिक्स को हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे? बस आप ये लिख देंगे, उसमें आपका कंट्रोल खत्म हो जाएगा ना बेटा। हाई सेलिंग प्राइस होगी, सही है। मिडिल मैन ऐड हो जाएगा तो हाई, ये मिडिल मैन वाली बात करोगे ना तो वो आपको एनालिसिस के मार्क्स मिल जाएंगे। फिर रिकमेंडेशन में अगेन वही, why one is selected, why two are not selected। जी बेटा बोले। सर अब जैसे मैंने पहले भी हमने लिखा ऑनलाइन में कि ऑनलाइन सॉरी, वो आप खुद से बेचेंगे तो कस्टमर के साथ रिलेशन होगा, फीडबैक ले सकते हैं। हाँ, तो सर होलसेलर में इसका उल्टा नहीं लिखूंगा, आप ये बोलना चाह रहे थे आप, है ना? नहीं नहीं नहीं, एक ही के उल्टा ना लिखो। हाँ वही बोल रहा हूँ, जैसे अब होलसेलर में मैं ये नहीं लिख सकता, अगर मैंने उस ऊपर लिख दिया कि कस्टमर का रिलेशन अच्छा होगा, तो नीचे मैं ये नहीं लिख सकता कि कस्टमर से आप पर्सनल हाँ, कांटेक्ट सेम नहीं बना पॉइंट है सकते। ना। वो तो वो बात हो गई ना कि एक ही पॉइंट तुम दो बार लिख रहे हो। अच्छा जी, चलें। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन आ गया। हाँ भाई, एप्लीकेटिव है, जेनेरिक है? एप्लीकेटिव है। ये भी आपके पास आ गया, एप्लीकेटिव। सिर्फ बेसिकली एक ही आपके पास बेटा जेनेरिक क्वेश्चन आता है ए पार्ट में, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके पास होता है वही आपके पास जेनेरिक होता है, बाकी सारे एप्लीकेटिव होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब कैश फ्लो की सोर्सेस बतानी है, तो ये तो बहुत आसान सवाल है। क्या होगी कैश इनफ्लो की पहली सोर्स? वेजेस, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी तो आउटफ्लो हो गई ना। इनफ्लो बताओ। सेल्स। कैश सेल्स, और डिस्काउंट रिसीव्ड। नहीं नहीं नहीं, एक तो कैश सेल्स हो जाएगा बेटा, और क्रेडिट रिसीव, यानी कि जो आपने उधार पे माल बेचा था वो आपके पास आया। ठीक है ना। नॉन करंट एसेट बेच दिए तो पैसा आ जाएगा, बैंक लोन से आ जाएगा, ओवरड्राफ्ट से आ जाएगा। नहीं, ट्रेड रिसीवेबल से कैश नहीं आता भाई। अच्छा, आउटफ्लो कैसे होगा? सप्लायर। यूटिलिटीज की पेमेंट, यानी कि बिल, रेंट और परचेजेस। ठीक है।
रेंट और सप्लायर पेमेंट दोनों सही है। अच्छा अब देखो दोबारा अपेंडिक्स 3 यूज करते हुए आपको बताना है कि जी ये बात याद रख लो कि जो फोर्थ पार्ट का बी होगा ना, क्वेश्चन नंबर 4 का बी, ये हमेशा यूनिट 6 से आता है। टैक्सेस डिक्रीज हो रहे हैं, दोनों टैक्सेस उन्होंने बताया कम हो रहे हैं, तो एक तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, लोग ज्यादा परचेज करेंगे, सही है। दूसरा क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि वो बिजनेस प्रॉफिट का टैक्स भी कम कर रहा है, सही है। लग्जरी गुड में ज्यादा स्पेंड करेंगे। अच्छा इंटरेस्ट रेट से क्या होगा बेटा, एक तरफ कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज हो जाएगी, जी जी बिल्कुल इकोनॉमिक्स की टर्म्स, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज हो जाएगी, और क्या होगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएगी। और कंजप्शन क्या हो जाएगी, कंजप्शन डिक्रीज होगी, तो कंजप्शन डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी। फॉल करेगी या डिक्रीज करेगी, दोनों करेगी। नहीं डिक्रीज करेगी बेटा, प्राइसेस थोड़ी कम हो रहे हैं, डिक्रीज करेगी। फॉल का मतलब होता है मूवमेंट प्राइस वाली। अच्छा बिजनेस पे ज्यादा इफेक्ट किसका आएगा, एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस पे ज्यादा इफेक्ट किसका आएगा, राइट, टैक्स का इफेक्ट ज्यादा है। ठीक है बेटा, चले ये मैं एनोटेटेड पेपर अलोंग विद द रिकॉर्डिंग शेयर कर देता हूँ ग्रुप पे, ठीक है बेटा। चल है जी जी बेटा बोले। ये जो एक पेपर होता है इसमें हर तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं या फिर अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि 8 मार्क्स के बहुत काइंड के होते हैं और नहीं हर 12 तरह के मार्क्स आते के। हैं भाई, हर तरह के आते हैं, इसीलिए कहता हूँ कहीं कोई प्राइवेट नहीं हो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, सब कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि 8 मार्क्स के जैसे 2 पॉइंट के भी क्वेश्चन आ जाते हैं और 4 पॉइंट के भी आ जाते हैं। नहीं ऐसा नहीं होता, तो ऐसा नहीं होता, पैटर्न फॉलो होता है। देखिए पैटर्न फॉलो करे, जैसे कि 1A जो है वो हमेशा ऐसा आएगा, 2A हमेशा ऐसा आएगा, 3A हमेशा ऐसा आएगा, और 4A हमेशा ऐसा आएगा। सर ये अपेंडिक्स वाले में ही आता है ना ये ब्रेक इवन वाला क्वेश्चन? हाँ हाँ हाँ, दो अपेंडिक्स वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलो मैं भेज देता हूँ रिकॉर्डिंग भी और ये पेपर भी एनोटेट हुआ होगा, ठीक है बेटा। चलो कोई और क्वेश्चन हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना।